Since May, Kashmiri Pandits and other minorities have been protesting the targeted attacks on their community in the Kashmir Valley. Government employees have been demanding a transfer out of the valley, but nothing has moved. Have Pandits become the forgotten headline? I'm Barkadat Yo with the Mojo story. And let's take you through the key developments of a story that should never have fallen off the headlines. As we said, for weeks now, there have been dharnas, protests, and sit ins both in the Kashmir Valley and in Jammu. Pundits have been protesting after a spate of targeted terror attacks. Government employees, who were in particular as part of a special package sent to the Kashmir Valley, are saying transfer us out. This is about our right to life. But the government has not moved on this demand. To hear from what is now happening with this protest and what the pundits in Jammu and Kashmir are hoping for, let's go across to Yogesh Pandita. Yogesh is one of those protesting government employees. And like I said, it's been weeks now since this protest has been on. Thank you, Yogesh ji, and namaskar. सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि सब मीडिया में, देश में आगे बढ़ गए, आप लोगों को भूल चुके? यू हैव बीन ऑन प्रोटेस्ट सिंस मे, अब हम जुलाई खत्म होने को आ रहा है। आप लोगों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। You're in Jammu right now. How many weeks has it been since you're protesting? Well, ma'am, actually, in Jammu counterpart, we started our protest from 13th of June 2022, and we have been protesting there continuously in Relief Commissioner's office, Jammu, who is our custodian. So, coming across to your question that whether media has forgotten or not, ma'am, if I talk about the local media, they have given us tremendous support. While as the national media, some of the channels are covering us, but I should say the pain and agony which we are feeling and the we want to express is not coming on the televisions, because every day there are some different sort of newses. We feel somewhere we are deprived. We have been And always a part of the discussions, but when our pain is there, when real pain is there, what is happening, it is something, a target killings are going on, which is a very serious issue for a deprived community who has been in a exile from last 3 decades. But how can anyone forget that this should be an headline always on till our demands are not addressed? yeah, tell me a little bit about yourself, and your family. Did your family have to leave? Was it forced out like so many other Pandit families in the 90s? How did you end up going back? अपने बारे में कुछ बताइए. हाँ जी मैम, मैं सिंस जब मैं बोलता हूँ मैं योगेश पंडित एक कश्मीरी पंडित हूँ, तो मैं कम्युनिटी को पूरा रिप्रेजेंट भी करता हूँ, क्योंकि जो मेरा पेन है वो ऑलमोस्ट सबका ही एक जैसा पेन है। एंड जो जो मैं बोलूंगा ये आप सब ने काफी पहले से भी सुना होगा। इट स्टार्टेड इन 90s, जब एक एक्सोडस हुआ था वहां पे, फोर्स्ड एक्सोडस। वी कॉल इट 19 जनवरी 90, बट एक्चुअली ये 89 से ही स्टार्ट हो गया था। तो अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, हम एक कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो वहां पे भी रातों रात हम वहां से निकल चुके थे बिकॉज ऑफ दिस फियर साइकोसिस, जो आज भी है वहीं पे। ये सेम कंडीशन सेम है। टारगेट किलिंग्स उन दिनों भी थी, टारगेट किलिंग्स आज भी है। और पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट किलिंग्स, किसी पर्सन को जब हम टारगेट करते हैं उसमें एक डर बिठाते हैं, और उसके बाद एक किलिंग से पूरी कम्युनिटी शिफ्ट होना, उसको जेनोसाइड भी कहा जाता है मैम। और ये जेनोसाइड जो है ना मैम, आज हमें सच में फील हो रहा है कि दैट आफ्टर 32 years ऑफ दिस एक्साइल वी आर रियली द विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड मैम। और हम आपकी जो हमारी फैमिली फैमिली। थी, आपकी जो फैमिली जो कि कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर में बसती थी, जब उनको छोड़ना पड़ा तो उसके कितने साल बाद आप वापस जा पाए? डिड यू गो फर्स्ट एज पार्ट ऑफ द स्पेशल स्कीम टू बी अ सरकारी एम्प्लॉय? यस मैम, मैं हम मेरे इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी फर्स्ट टाइम ही उसके बाद इस वैली को देख पाए जब हम वहां गए थे। इट वाज अ पैकेज, government calls it as a package, but still there is a big confusion मैम, there's a big confusion। जब गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, गवर्नमेंट राइट्स इट्स एज अ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर माइग्रेंट्स। एंड मैं थोड़ा इस पे बैक थ्रू देना चाहता हूँ कि हुआ क्या था 2010 में। इट वाज अ यूपीए गवर्नमेंट led by our former prime minister Shri Manmohan Singh ji। They announced the package। It was a package that 6,000 unemployed youths of Kashmiri Pandits, और जो माइग्रेंट
youths who have transferred or migrated from the valley after 1989, 1990, they will be provided jobs. So it was a good move at that time because it was a need of our. But Hmm. there were some ambiguities into it. Ambiguities was like it seems that there was a bond which you have to sign, and that bond is very unconstitutional. That bond, an agreement, it is mentioned in SRO 412 of 2019, 2009, I'm sorry. उसमें ये बॉन्ड लिखा जाता है that कोई भी एम्प्लॉय जो इस एम्प्लॉयमेंट को पहले लेगा, he has to sign a bond कि Hmm. वो कश्मीर वैली से बाहर नहीं निकल सकता किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ उस बॉन्ड की। जी। यू सी हाउ मच I will read that unconstitutional bond. What it says. Jammu and SRO 412 of 2019 cites the employment as Jammu and Kashmiri Migrant Special Drive Recruitment Rule. Nowhere the return and rehabilitation word has been used into it. But उसके बाद ये बॉन्ड क्या कहता है मैम? ये कहता है the agreement mentions harsh conditions such as whereas the appointee agrees to serve in Kashmir Valley and will at no stage opt or seek for transfer outside Kashmir Valley. Another Hmm. condition, whereas the appointee agrees that in case he migrates again from Kashmir Valley at any stage for any reason whatsoever, he will stand automatically terminated from the service and shall have no claim against any post under the state. These are some harsh conditions. ये यहाँ पे इनसे बोला जाता है कि बॉन्ड साइन करो, हमने भी किया, लेकिन उस टाइम पे एक नीड थी मैडम। एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी पिछले 3 डिकेड से एक एग्जाइल में थी, तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ था इसकी ये नीड बन चुकी थी कि जी। बोलते ना कि it was same exploiting the needs of that person और तो आप कह दूसरी रहे हैं ये स्कीम कांग्रेस के दौरान शुरू हुई और मोदी सरकार के अंतर्गत कंटिन्यू हुई, और ये बॉन्ड आपने भी साइन किया जिसमें लिखा है कि आप कश्मीर के बाहर ट्रांसफर नहीं सीख कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, अब तो आप ये इसमें क्या हो रहा जी। आज के दिन में हो क्या रहा है मैम कि आज के दिन में मुझे ऐसा लगता है ये बॉन्ड सच में साइलेंट किलर हो रहा है, क्योंकि अगर आप वहां से निकलोगे नहीं, टारगेट किलिंग हो रही है हम्म। समवेयर। इट इज चैलेंजिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 गिव्स मी द राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 गिव्स मी द राइट टू लाइफ। तो ये बॉन्ड यहाँ पे कैसे वैलिड होता है? वी आर स्टिल कंफ्यूज कि वेदर लाइफ इज इंपॉर्टेंट और बॉन्ड इज इंपॉर्टेंट। एंड आज की डेट में मैं बताना चाहता हूं दैट जब यूपीए सरकार ने ये पॉलिसी लाई थी, मुझे हम्म। लगता है कुछ थोड़े होमवर्क्स उसमें पेंडिंग रह गए हैं, क्योंकि सबसे मेजर मुद्दा जो था मैम 2010 में इन्होंने कहा ये रिहेबिलिटेशन प्लान है, कश्मीरी पंडित्स को हम वापस बसाएंगे वहां पे। सो इट स्टार्टेड विद एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ तो 2010 में मैडम 1800 एम्प्लॉयज को जॉब दिया गया। आउट ऑफ 6000 1800 एम्प्लॉयज को जॉब दिया गया। उन्हें जॉब दिया गया, एक इंटरव्यू में पूछा था, मतलब जैसे इंटरव्यू में सिलेक्शंस होते हैं वैसे सिलेक्शन होते थे, और लास्ट में पूछा जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उस पर मेरिट बना के तो शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद जब वहां पे रहे, उधर सिर्फ 2 या 3 कैंप्स थे मैम, ट्रांसिट कैंप्स जिनको ये बोलते हैं। ट्रांसिट कैंप्स मैम उसमें शायद शेखपुरा एंड वेसू, शेखपुरा इन श्रीनगर एंड वेसू इन अनंतनाग साइड कुलगाम में बोलते हैं मैम। 2010 में लिमिटेड लोगों को अकोमोडेशन मिली, लेकिन 2012 में इनमें से 75% अकोमोडेट हो चुके थे, इनमें से जो ये लगे थे। उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस धीरे धीरे अपने इंटरव्यूज में चलता रहा। 2014 में एक रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन 2015 में और रिक्रूटमेंट हुई, अभी भी 18, 19, 20 यहां तक रिक्रूटमेंट होती रही। आज का अपडेट ये है मैम कि अभी तक हमारे पास 4750 एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो चुकी है, इसमें से 2022 की बात कर रहा हूँ, जिसमें से अभी मेजर चंक पीछे लगा था। बट इसमें जब लोगों ने ज्वाइन किया, आज की डेट में 80% लोग रेंट पे रहते हैं। आउट ऑफ 4750 पीपल, ओनली 1200 पीपल आर इन दिस ट्रांजिट कैंप्स। और मैम जो ट्रांजिट कैंप्स में रह रहे हैं लोग, मैनी टाइम्स मैंने बहुत मीडियाज ने ये कवर किया है, उन्होंने वहां पे हमारी कंडीशंस देखी है मैम। उन्होंने वो कंडीशंस देखी है कि 4-4 फैमिलीज को एक किचन शेयर करना पड़ता है, 4-4 फैमिलीज को एक रूम शेयर करना पड़ता है।
4-4 फैमिलीज को एक रूम शेयर करना पड़ता है, एक बाथरूम शेयर करना पड़ता है। तो जो कम्युनिटी ऑलरेडी इन एग्जाइल थी, जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड थे, उनका तो ये ट्रीटमेंट नहीं बनता है, एटलीस्ट ये ट्रीटमेंट नहीं बनता या है। 2000 मैं बिल्कुल 2014 में जी, मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ, ट्रांजिट कैंप्स के हालात, की अकोमोडेशन आपकी अपनी नहीं है, लेकिन जो सरकार या सिक्योरिटी एनालिस्ट है उनका कहना है कि अगर जो वैली में आप जैसे लोग पोस्टेड हैं उनको बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए तो टेररिस्ट की जीत होगी। यही तो टेररिस्ट चाहते हैं, उनकी जीत होगी। इस पे आप क्या बोलेंगे? मैम देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा आंसर है। देखिए, हु आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम अनआर्म्ड मैन। मैं जब वहां पढ़ा रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, इट इज नॉट माई ड्यूटी टू चेक कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी राहुल भट्ट थे जो शहीद हुए, वो ऑफिस में मारे जाते, अपना काम कर रहे थे, तो सडनली अननोन गनमैन्स, स्टिल दे कोटेड अननोन गनमैन्स आते हैं, वो मार के चले जाते हैं ऑफिस में। हम्म। अब मैं वहां पे अनआर्म्ड बंदा हूँ, मैं एक सिंपल सिविलियन हूं। अगर टेररिस्ट की जीत मेरे से ही डिफाइन हो रही है, तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होने चाहिए ना मैडम। सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, मतलब इज इट लाइक दैट आई एम एन एक्सपेरिमेंटल रैट and my lives means nowhere to anyone? We were ready for nation contribution and we were doing that from last 10 years, madam. 10 we did that contribution from last 10 years. 2016 में, I will remind मैडम आपको भी, आप भी काफी कवर कर रहे थे, तो 2016 8 जुलाई जब बुरहान वानी की किलिंग होती है, उसके बाद बहुत मॉब इरप्ट होता है कश्मीर वैली में। उसमें मैडम उस टाइम पे इन्हें मॉब्स ने हमारे जो ट्रांजिट कैंप से उन पे स्टोन पेल्टिंग की थी, कुछ क्वार्टर्स जलाए गए थे, दैट इज ऑन रिकॉर्ड्स। उस टाइम पे फिर हम वहां से निकले थे, पूरी कम्युनिटी वहां से निकल के मुझे यहाँ याद पे है, मुझे याद है, धरना मुझे प्रदर्शन, याद है। धरना प्रदर्शन। मगर उस कहने का मतलब है मैडम, उस टाइम पे हमने अलार्म दे चुके थे, हमने मेमोरेंडम्स दिए थे, यूनियन मिनिस्ट्री में हमने मेमोरेंडम दिया था कि दैट दी सी कश्मीरी पंडित्स आर एट रिस्क, वी हैव बीन अटैक्ड। आज हम रिस्क पे हैं, हमारा मेमोरेंडम बोलता था। हमारा मेमोरेंडम इतना विजनरी था उस टाइम पे कि बता रहा था कि एक दफा आएगा जब किलिंग्स भी होंगी, और आज वो टाइम आ चुका है जहां पे इतनी किलिंग्स, इफ आई विल स्टार्ट किलिंग्स मैम, किलिंग्स देखिए कैसे कैसे हो रही है, कोई भी नो स्टोन लेफ्ट अनटर्न फॉर दिस मैम। सबसे मुझे एक पहले बात 2000 बताइए, मुझे एक बात बताइए, आप आपने जैसे कहा आप पहले भी यू हैव साउंडेड द अलार्म, इंक्लूडिंग आफ्टर द बुरहान वानी एलिमिनेशन इन 2016। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आपकी टेक्निकली पोस्टिंग कश्मीर वैली में है, लेकिन आप जम्मू में हैं। अ, आपको कुछ आशंका है कि कुछ एक्शन वगैरह ले ले आपके खिलाफ क्योंकि आप कश्मीर में नहीं है? मैम वो अब गवर्नमेंट का काम है एक्शन लेना। हमारे पास तो मैंने एक लाइन सीखी थी जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने कहा था कोरोना के दौरान, इट वाज वेरी फेमस, जान है तो जहान है। मैम जान है हम्म। तो सब कुछ है, जान हम्म। नहीं है तो वहां अभी जो रेंट पे रह रहा है, हाउ ही कैन ट्रस्ट एनीवन, जो रेंट पे रह रहा है उसकी लाइफ तो बिल्कुल एट स्टेक है, बिकॉज जब ऑफिस में मर सकता है तो रेंट वाला भी, क्योंकि जो ट्रांजिट कैंप वाले हैं वो तो अंडर सिक्योर जोन है और ड्यूटीज पे नहीं जा रहे हैं मैम। लेकिन जो हम्म। रेंट पे है वो तो 80% आबादी है, उसमें से 80% आबादी रेंट पे रहना इज अ हाई रिस्क मैम। तो वो तो एक अभी मेजर इशू अभी है। आप कब कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? मैं आखिर में आपसे पूछूंगी, आप सरकार, आप कब से, महीने हो गए हैं आप लोग धरने पे हैं, आप कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? मैम जब तक हमारी डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया जाता, डिमांड्स बहुत जेन्युइन है हमारी, बहुत सिंपल सी डिमांड्स है। हम ये नहीं कहते हम वहां नहीं जाना चाहते, हमने आज तक ये बात नहीं की, वी लव और मदरलैंड। बट मैम ये चीज है कि अगर कुछ छोटा सा चंक को वहां भेज दिया जाए, और सिक्योरिटी लैप्सेस है लगातार। अगर आपने रिसेंटली एनएसए श्री अजीत डोभाल सर का एक इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने उसमें ऑन रिकॉर्ड्स कहा है कि कश्मीरी पंडित्स आर हाईली वल्नरेबल। उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से कि देयर लाइव्स आर हाईली वल्नरेबल। तो हम तो यही चाहते हैं, जब तक सिक्योरिटी सेटअप ठीक नहीं हो जाता है, वी नो आज हाइब्रिड टेररिज्म इज एट इट्स पीक। आप आए दिन यस। खबर सुन रहे हो, हर जगह से एमुनेशंस रिकवर हो रहे हैं, आर्म्स जी। एमुनेशंस मिल रही है। तो हाइब्रिड टेररिज्म एट इट्स पीक है, ये भी सबको कंफ्यूज कर चुकी है गवर्नमेंट के जो तंत्र है, वो भी कंफ्यूज है आज के दिन में कि इतना एमुनेशन अगर निकल रहा है तो ये किसके लिए था, एटलीस्ट था किसके लिए। अभी रिसेंट तो ये, एग्जांपल्स तो मैं दे चुका हूं, किलिंग्स जी, जी, कंप्लीट इतने कंप्लीट करिए इतनी किलिंग्स। ये रिसेंट किलिंग्स अगर आपने देखी होगी, मैं आपको बताता हूँ किलिंग्स कैसे कैसे हुई। सबसे पहले इन्होंने एक बिजनेस सेक्शन था, उसमें एक जो हमारे कृष्णा डाबा के बेटे थे, फेमस कृष्णा जी। डाबा सिटी सिटी सेंटर जी। श्रीनगर, उनके बेटे थे आकाश आकाश जी।
उसके बाद ML बिंद्रू जी, ये है बिजनेस सेक्शन, और इसके साथ 3-4 और। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी आया नॉन लोकल लेबर्स, उनकी बात तक नहीं उठी है। नॉन लोकल लेबर्स बहुत जी ज्यादा मारे गए मैम, जी चाहे वो जी गोलगप्पा वेंडर हो, चाहे कोई हो मैडम। इसके बाद तीसरा सेक्शन जो बनाया गया था, तीसरा सेक्शन था मैम जो नॉन माइग्रेंट से, जो हर बार बोलते थे हम कश्मीर में रहे। उसका एक एग्जांपल था बंटू जी शर्मा, जो पुलिस में थे, वनपू सेक्शन में रहते थे। जब वो वनपू में रहते थे वो माइग्रेट भी नहीं हुए थे, लेकिन अब इनको भी अटैक किया गया, और आज की कंडीशन ये है कि उन्होंने अपना घर वहां से छोड़ के ट्रांजिट कैंप में चले गए। यानी कि दे अगेन फॉलोड द सेम स्टेज जो हम 30 साल पहले या जेल जो। जी उसके बाद जी नेक्स्ट जो सोसाइटी सेट ऑफ सोसाइटी आती है वो थी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, क्योंकि ये लगे थे, ये एक मेजर चंक था। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ सोसाइटी थी मैम जो SC कम्युनिटी के लोग वहां पे थे। SC कम्युनिटी के लोग भी वहां पे कुछ डेप्यूट हुए थे जिनकी पोस्टिंग्स वहां पे थी, वो भी धरना प्रदर्शन पैरेलली हमारे कर रहे जम्मू में। उनमें से भी एक एक को मारा गया। उसमें से दीपक चंद जी है, और सुपिंदर कौर जी है जो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती है, और अभी श्रीमती रजनी बालाजी थी। और उसके बाद में बैंक मैनेजर विजय कुमार जी को मारा जाता है इनसाइड द बैंक। आप देख सकते हो डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटीज को कैसे कैसे टारगेट और एक टेरराइज किया जा रहा है ताकि वो सब निकल जाए। जी उसके जी बाद में एक और सेट ऑफ या नहीं, हम ये सब ट्रैक कर रहे हैं योगेश। आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। अब मैं आपको एंड में पूछूंगी कि आप अभी जम्मू में हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपका धरना तब तक चलेगा जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती। आपका एक हाँ जी मेन मैम, डिमांड, वन मेन डिमांड, सेंट्रल डिमांड क्या है? वन डिमांड मैडम, वन डिमांड वन सॉल्यूशन, रिलोकेशन। हमें बाहर बिल्कुल रिलोकेट कर दीजिए आउटसाइड द वैली। जब तक के हालात वहां ठीक नहीं होते हैं, हमारी जाने जा रही है, आज अलार्म दे रहे हैं, आगे और जाएंगी मैम। अभी नहीं सेफ फील हो रहा है, हमारे कोई शौक नहीं, हमने किया है, ड्यूटीज की है वहां पे। आज की डिमांड एक ही सॉल्यूशन है, हमें रिलोकेशन। गवर्नमेंट इज ल्यूरिंग, आई वुड लाइक टू मेंशन दैट मैम। कुछ चीजें आज के दिन में हो रही है जो बड़ा अचंभा सा लग रहा है, विच आई फील कि गवर्नमेंट आज के दिन में अकोमोडेशन की बात कर रही है, आज के दिन में प्रमोशंस की बात कर रही है, ट्रांसफर्स की बात कर रही है मैम। वो तो एक सिविल सर्विस रूल्स है, किसी के सर्विस रूल्स एट पार जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के वैसे रहने चाहिए थे। अगर उनमें से जनरल लाइन से प्रमोट हो रहे तो ये भी प्रमोट होने चाहिए, तो वो कोई मसला नहीं था। वो इससे डिमांड से रिलेट नहीं होता है। अकोमोडेशन, अगर आपको लगता है कल हमें कश्मीरी पंडित वहां बसाना है तो अकोमोडेशन बनाइए। मगर आज की बात बताऊं, 12 साल हो गए, अकोमोडेशन नहीं पूरी हुई मैम, नहीं कुछ हुआ पूरा। अभी तक जी 80% का रेंट पे रह रहा है तो वो भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हमारी आज एक ही डिमांड है, वो है रिलोकेशन बाहर, या हमें अटैच कर दीजिए जो हमारे कस्टोडियन ऑफिस है, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस जम्मू में, उनके साथ हमें अटैच कर दीजिए। हम जब तक अपने आप को सेट कर सकते हैं मैम, क्योंकि एक कम्युनिटी कितनी बार पे करेगी मैम। एक बार पे कर यस चुके हैं हम, उस टाइम पे हमने लग्जरी भी छोड़ी, हमने अपने बड़े बड़े घर छोड़े, मदरलैंड छोड़नी पड़ी मैडम। इसी कम्युनिटी से हर बार क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है यही सब कुछ सेक्रीफाइस करे? आज हमारे पेरेंट्स इस कंडीशन में नहीं है वो अपनी बॉडीज, बच्चों की बॉडीज रिसीव करे जो कश्मीर से आ रही है मैम। कितनी बार एक डिप्राइव्ड कम्युनिटी, एक एग्जाइल्ड कम्युनिटी को आप बार बार आगे लगाओगे? उनके सेक्रीफाइसेस बहुत हो चुके हैं मैम, एक बार थोड़ा उन्हें सुख से जीने दो, एक बारी जीने दो। our leadership has given mandate to this NDA government and having a good hopes to NDA government. हमारी जो लीडरशिप है, they are given mandates to NDA with बिल्कुल a hope बिल्कुल कि शायद ये कुछ हमारे लिए अच्छा करेंगे। and we are hoping that is why we are requesting दिल से, ऐसे हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारी डिमांड सुनिए सर, हमारी डिमांड बहुत जेन्युइन है, मर रहे हैं हम सर, बचाइए हमें। आई फील योर पेन। बहुत दुख होता है सुन के, गुस्सा भी थोड़ा आता है कि कब से आप ये एक तरह से डिमांड कर रहे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि किसी को ज़बरदस्ती, विदाउट बीइंग एबल टू गारंटी सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, लाइवलीहुड तो बाद में आता है, पहले तो राइट टू लाइफ है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है योगेश, हम ये इशू को ट्रैक करेंगे। थैंक यू, आपने इतनी खुलकर बोला एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। Please keep us posted and we'll keep tracking this story. Thank you for talking to us and stay safe. Namaskar, sir. Namaskar. Thank you. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.